Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हो गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024। द लुक ऑफ द टीम इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टीम दैट वी सेंट इन 2022 वेयर वी क्रैश्ड आउट इन सेमीफाइनल। बहुत ही पैथेटिक दिन था वो, और उस पर भी हम लोग एपिसोड किए थे उसके बाद। लेकिन अभी टीम आई है, 15 लोगों का लिस्ट है। और BCCI बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है उसके कंपैरिजन में। बैड परफॉर्मेंस को वाइस कैप्टेंसी से रिवॉर्ड करने का प्रावधान मेरे ख्याल से BCCI के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती। तो BCCI को इस बात के लिए अगर वो लोग ग्रेटेस्ट प्लेस टू वर्क एट वाले सर्वे में पार्टिसिपेट करेगा तो आई एम श्योर दे विल डू वेल। बट दैट्स ऑल। विद दैट 15 का नाम आ गया है। 15 में से क्या संभावनाएं देखते हैं हम 11 का, और वर्ल्ड कप के चांसेस, कंडीशंस, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो विद दैट कॉन्टेक्स्ट, ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर whoever. विरोध भाई प्लीज। बेसिकली बात तो सब चीज करेंगे, बट बिकॉज अजित भाई ने वाइस कैप्टनसी वाली बात रखी, आई थॉट कि इवन बुमराह कुड हैव बीन प्रेफर्ड ओवर पांड्या। एंड माय लॉजिक इज कि अगर इस पूरे टीम में अगर एक श्योर शॉट पहला नाम आएगा, दैट विल बी बुमराह। परफॉर्मेंस भी कर रहा है, IPL में भी है, थ्रू आउट ही इज अ परफॉर्मर, एंड द पर्सन हु हैज कैप्टन इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम, how can he not be a vice captain of a T20 squad जब you know that he will be playing every match? विराट कोहली ऑब्वियस है कि पहले फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, you cannot name him vice captain. maybe थोड़ी देर के लिए रोहित शर्मा is not on the field, विराट कोहली may lead also. But then I thought कि there was no way that Hardik Pandya deserved to be the vice captain of this team, because Hardik Pandya on his day might be dropped also in favor of maybe a Shivam Dube or any other batsman or something, combination पे depend करता है, because his performance presently does not guarantee him a sure shot place in the team. And that's why इस बात से ही शुरू करूंगा कि I think this was a mistake. This was not the best thing. They could have opted for some other player. Even Surya Kumar Yadav is a better vice captain on paper because of the fact that, again, a sure shot, he is going to play all the matches. Rishabh Pant is a sure shot, maybe Sanju Samson के साथ कभी हो सकता है clash, but then I thought they were better options. That's my first point here. Yeah, I think Pandya को आप vice captain बना के you have basically, to your point, assured कि he'll be in the playing 11, which to me is not something that should be a given at the start of the tournament, particularly given the recent form that he's coming in with. ना रन बनाया है, ना विकेट लिया है, और आप उसको अगर बोल रहे हैं कि he is my primary all-rounder going into the tournament, then facts don't justify that, right? The other point, जो कि मतलब where I'm going to throw as a question, is कि is Shivam Dube going as a batsman or is he going as an all-rounder into this tournament? Because if he's going as a pure batsman, what justifies picking him ahead of people like Rinku Singh, for example? On the back of, recent form, sure, Shivam Dube has scored runs. But अगर आप क्या as an all-rounder उसको लेकर गए हैं, तो फिर I don't see the justification because he hasn't bowled. और अगर आप pure batsman की तरह लेकर जा रहे हैं, then why Shivam Dube and why not some of the other people who are in the reserve squad, like even people like KL Rahul, people like Rinku Singh, who on paper at least, playing for India recently have scored tons and tons of runs in the recent past. T20 में बनाया नहीं बनाया वो अपनी जगह. So I think that's a question that I would have for both of you. कि Shivam Dube, how do you see him in this side? इस पे दो तीन चीजें हैं. पहली चीज, BCCI is not very transparent organization in the sense that selectors don't address media. So you don't know what exactly is the role of Shivam Dube. Number two, is he an all-rounder? सुनील गावस्कर ने भी बॉलिंग ओपन किया. He has taken one great wicket of Zahir Abbas. तो शिवम दुबे तो बेहतर है ही.
So in that sense, maybe he's an all-rounder. But I personally feel, to be serious, why Rinku Singh is not selected? Because of this impact player rule. Impact player rule ke karan Rinku Singh hardly played 80 balls in the 9 or 8 matches that Calcutta has, played in this entire IPL. So last, मतलब अगर कहा जाए एक महीने में एक आपका प्राइमरी बैट्समैन 80 बॉल खेला है. On the other hand, CSK has promoted Shivam Dube and have made him play more than 200 balls in the last 8 matches. On top of that, the thinking, as you can see, our composition also, 4 spinners ke saath ja rahe hain. The whole thinking is maybe the spinning tracks would be there, and there you would throw Shivam Dube as a destructible, destructive batsman, जो कि सामने spin attacks को पूरी तरह से बाहर कर देगा. But for that, Shivam has to be in the lineup. 12 पे नहीं होगा आईपीएल की तरह यहाँ पे मैचेस कि भाई एक को निकाल के बाद में ले आए. And I don't see presently how you are going to manage Shivam Dube in this 11. That's my feeling right now. Ajit bhai. Correct. So I have a take. Shivam Dube को Indian team still considers an all-rounder. क्योंकि लास्ट टाइम जब T20 इंटरनेशनल हम लोग खेल रहे थे, अफगानिस्तान यहाँ आया हुआ था, तो उसमें शिवम दुबे से हम लोग थोड़ा ही बहुत बॉलिंग करा रहे. मतलब वो प्राइमरी 5 बॉलर नहीं हो पाएगा, वो छठा बॉलर रहेगा इफ एट ऑल अगर लाइनअप में है. तो प्रॉब्लम ये है कि अब पांड्या को अगर हम खिलाएंगे हर बार, तो इट इज गोइंग टू बी अनफेयर टू शिवम दुबे एज वेल एज संजू सैमसन. क्योंकि देखो पंत तो कीपर है ही. अगर पांड्या की जगह हमको बैटर लाना है, इट विल आइदर बी अ शिवम दुबे और अ संजू सैमसन. शिवम दुबे का उसमें प्रेफरेंस ये है कि शिवम दुबे कैन ऑल्सो गिव सम ओवर्स इफ रिक्वायर्ड. ठीक है. उसके अलावा अदर प्लेस में ये हो सकता है कि अगर स्पिनिंग कंडीशंस एक्सपेक्टेड है, तो हम जडेजा और अक्षर दोनों को भी खिलाने का ऑप्शन रख सकते हैं. हमारे पास 2 ऑलराउंडर रहेंगे, एक एक्स्ट्रा स्पिनर रहेगा, तब हम पांड्या को ड्रॉप करेंगे. लेकिन या तो आप कहो कि वाइस कैप्टनसी आपको अनड्रॉपेबल नहीं बनाता. वाइस कैप्टन आप हो तो आप ड्रॉप हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई और बन जाएगा वाइस कैप्टन उस मैच में, या वाइस कैप्टन कोई नहीं रहेगा. ये भी बीच में इंडियन टीम किया था, बहुत उसमें भसड़ हो रहा था, तो वाइस कैप्टन अनाउंस ही नहीं करेंगे. हम कैप्टन रहेगा, वो हर मैच खेलेगा, बाकी वाइस कैप्टन की चिंता नहीं है. तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता था. और हार्दिक पांड्या कैन बी द केएल राहुल ऑफ दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया. वो गले की हड्डी जो आदमी ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है. और ओनली गुड डिसीजन इन दिस होल सिलेक्शन इज कि केएल राहुल के बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं है, विच इज इंपॉर्टेंट. मतलब केएल राहुल एज अ प्लेयर में 5000 खूबियां हैं, उसको बहुत सारी चीजों में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता. लेकिन T20 फॉर्मेट में जिस दिशा में T20 अब जा रहा है, केएल राहुल का गेम अभी सूटेबल नहीं है. वो 2 साल में फिर से बना सकता है यार, केएल राहुल के पास टैलेंट का कोई कमी नहीं है. लेकिन केएल राहुल का ना होना इज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडियन क्रिकेट, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड कप. बट पांड्या को लेके दे हैव अगेन डन समथिंग वेरी सिमिलर. 2020 वर्ल्ड कप लास्ट टाइम जब हुआ था रोहित भाई, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ही तीनों उस स्क्वाड का भी एनालिसिस कर रहे थे और केएल राहुल पे ही हम लोग थे. और केएल राहुल उस वर्ल्ड कप में 20 का एवरेज और 120 के स्ट्राइक रेट पे खेला. वो क्रिमिनल था. और पांड्या वो रेप्लिकेट करने में सक्षम है, और उसके पास एडिशनल बेनिफिट है कि वो 14 के रेट से मार भी खा सकता है इन दोनों काम करने के अलावा. तो पांड्या नहीं सेलेक्ट होना चाहिए था. पांड्या शुड नॉट हैव बीन इन 15 मेरे हिसाब से. वो और एश्योरिटी के साथ हो पाता अगर शायद शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे होते. और रिंकू सिंह को प्योरली केकेआर की वजह से कटा है रिंकू सिंह का. अदरवाइज रिंकू सिंह हैज नॉट पुट वन रॉन्ग फुट सिंस द टाइम ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया. एक भी चीज गलत नहीं किया है वो लड़का. सिर्फ केकेआर में खेलने की वजह से और इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से वो 7 नंबर 8 नंबर पे आके बैटिंग कर पा रहा है बेचारा. सिर्फ 80 बॉल खेल पा रहा है. शिवम दुबे को वही सीएसके का बेनिफिट मिला है कि वो ऊपर आके खेल रहा है और रन बना रहा है. तो जो रिसेंसी बायस होता है वो तो रहेगा ही, उसको कोई पूरी तरीके से डिनाई नहीं. इनफैक्ट बारिंग जडेजा, इस पूरे टीम में आई पर्सनली फील इवन अबव विराट कोहली, रिंकू सिंह वुड बी एज अ फील्डर. शिवम दुबे ऑन द अदर हैंड इज अ नॉट अ वेरी सेफ, मतलब लाइबिलिटी है फील्ड. लाइबिलिटी. सो इफ यू थिंक आई मतलब एकदम आई टोटली एग्री विद अजित भाई की कोलकाता नाइट राइडर्स ने, मतलब शाहरुख खान भली बाहर जितना भी बोलता रिंकू सिंह जाए, अंदर में उन्होंने पूरा इंश्योर कर दिया कि रिंकू सिंह नहीं जा पाए. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आपको पता था that Venkatesh Iyer या श्रेयस अय्यर या even that रघुवंशी, these people will not be going in the World Cups, क्योंकि नाम तक इनका नहीं था कहीं चर्चा में. आप रिंकू सिंह को आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं वो 5th पे खेल सकता है. Why can't he play at 4th number?
एक मौका तक नहीं दिया गया। आप 8-8 9-9 मैच उसको 7-8-6 पे खिला रहे हो, मतलब यू हैव वेस्टेड द होल मंथ। आई अंडरस्टैंड उन्होंने अपना अच्छा किया, आईपीएल दे आर डूइंग ग्रेट, बट आई डोंट थिंक कि रिंकू सिंह वुड हैव प्लेड एट 4 एंड देन दे वुडंट हैव वन द मैचेस। शायद 2-4 रन एक्स्ट्रा ही मारता, एटलीस्ट 2 इनिंग तो खिला सकते थे। ही कुड हैव बीन एबल टू शो हिज परफॉर्मेंस। यहाँ बिल्कुल अनलकी, अगर प्लेन अनलकी किसी की बात करें ना, दैट हैज टू बी रिंकू सिंह। सबसे disappointing इस पूरे में, because again some people may say Shubman Gill, but Shubman Gill was the opener, he had opportunities, ऐसा नहीं है। in contrast to that, रिंकू सिंह को opportunity नहीं मिला, इसलिए बेचारा यहाँ पे छूट गया, and that's very very unfortunate. Parashar, your take on Rinku Singh? यार अब इसके ऊपर और क्या बोले, मतलब I honestly felt कि as a pure batsman and especially recent अगर आप performances देखें international में, तो रिंकू सिंह has did not put a step wrong, right? तो अगर आप उस basis पे, क्योंकि IPL should not be the sole criteria for selecting your teams. I think we've talked about this at length, क्योंकि IPL I think ends up skewing stats quite heavily. एक महीने का tournament होता है, it's heavily biased in the favor of the batsman that we've already discussed. So to your point, जिसको ज्यादा मौका मिलेगा ऊपर खेलने का वो ज्यादा रन बनाएगा, right? And that bias will creep in. तो as a pure batsman अगर आप लेकर जाने वाले थे, तो my vote would have been to take somebody like Rinku Singh above Shivam Dube if this is the squad we are going with. But more importantly, to the earlier point, Hardik Pandya को अगर आप vice captain बनाए हैं, it is basically signaling that he's your primary all-rounder in the team. Period. Right? Because to your point, आप चाहते तो वाइस कैप्टन नहीं भी अनाउंस कर सकते हैं, but this is basically signaling, right? कि आप सिग्नल कर रहे हैं कि his name will go as the second name in that scoring sheet after Rohit Sharma, which to me is not justified, at least based on recent performances. In fact मेरे हिसाब से, and just again IPL के अभी तक के महीने भर के हिसाब से बता सकते हैं, इंडिया में अभी सिर्फ 2 ऑलराउंडर हैं, एक हार्दिक पटेल, सॉरी पांड्या, और दूसरा अक्षर पटेल, सॉरी हाँ वो दोनों गड़बड़ा गया, अक्षर पटेल। क्योंकि बाकी आप देखिए प्योर बैटिंग कर रहा है या तो प्योर बॉलिंग कर रहा है, ऑलराउंडर कोई नहीं बचा पूरे इंडिया में, यही 2 लोग हैं। सो जो पहले अर्जित भाई ने ये बात बोली ना कि मे बी वन पॉसिबिलिटी माइट बी कि ऑलराउंडर वाले स्लॉट में हार्दिक की जगह कभी अक्षर आ जाए, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, और हम तब अपने 2 पेसर या 3 पेसर जो भी है अकॉर्डिंगली वी माइट चेंज दैट कॉम्बिनेशन। वो हो सकता है कि आपका बुमराह नीचे हो, अर्शदीप हो, एंड देन वी हैव 3 स्पिनर्स, लेट्स से 1 कुलदीप या चहल, दैट वुड बी आइदर ऑफ द 2 बिकॉज दोनों बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर सकते, एंड देन जडेजा एंड अक्षर, एंड हार्दिक इज ड्रॉप्ड इन फेवर ऑफ लेट्स से शिवम दुबे। कहीं गलती से एक ओवर फेंक दिया, अच्छा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फुल फ्लेजेड बैट्समैन है, इट माइट बी that might be the case. I think to that point, my biases here are well known around Akshar Patel also. I don't consider him an all-rounder. Yes, you can look at his stats and say कि हाँ ठीक है टर्निंग ट्रैक मिलेगा तो बिशन सिंह बेदी बन जाते हैं, but I think पिछले वर्ल्ड कप में भी we talked at length about somebody like Akshar Patel coming in, and अगर पाटा विकेट है तो आके वो ढेला फेंकते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब सही है, बस एक ही चीज है कि इस बार का टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएसए, वेस्ट इंडीज वाले पिचेस माइट बी स्लगिश, दे माइट बी स्लो, एंड दैट्स व्हाई, मतलब देखिए अगर आप सब लोगों का देखिए, इवन ऑस्ट्रेलियंस दे हैव पिक्ड अ सेकंड स्पिनर इन द फॉर्म ऑफ एश्टन अगर, नहीं तो वो लोग एक के साथ जाते, दूसरा वो भी लेके जा रहे, सो एवरीबडी इज प्लानिंग होपिंग कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पिचेस ऐसे होंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वी शुड नॉट फॉरगेट हैज आल्सो गॉट मैक्सवेल, जो कि अब फुल फ्लेजेड स्पिनर ज्यादा है, बैटिंग कम कर रहे हैं, एटलीस्ट आईपीएल में तो भाई परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो आपके दिल्ली डेविल टीम में था जब से मैक्सवेल, इंतजार तब से है कि मारेगा। दिल्ली का मत उठाइए रोहित भाई, सब लोग दिल्ली में था, जितना लोग है सब लोग दिल्ली में था, क्लास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिल सॉल्ट, सब दिल्ली होकर आया है, लेकिन छोड़ी अभी उस पर बात नहीं करेंगे। दिल्ली बस यहाँ लोग इंडिया घूमने आते हैं, बाकी परफॉर्म करने के लिए कहीं और जाते हैं। तो मेरा पॉइंट वही है कि अगर पीछे जाना चालू करेगा आदमी तो एबी डिविलियर्स भी थे, हुआ करते 2009 वाज द सीजन, उनको भी जाने दिया गया था। और दिल्ली वाला पॉइंट तो यार, और दिल्ली विराट कोहली के ऊपर प्रदीप सांगवान को चुना था पहले। भाई ये तो चेरी ऑन द केक है, इस पे तो कुछ और ऊपर रखा ही नहीं जा सकता। मतलब लेकिन जो भी है, मतलब
हाँ चलिए आगे बढ़िए इसको तो। तो ये देखिए, तो हम लोग शिवम दुबे और रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के अराउंड का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बात कर ली। एक और टॉपिक है जो मेरे हिसाब से डिस्कस होना चाहिए कि ओपनर के तौर पे हमारे पास रोहित शर्मा तो फिक्स है, उसके अलावा हम लोग प्योर ओपनर जो लेके जा रहे हैं वो है यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल को हम लोग रिजर्व में डाले हुए हैं। तो क्या संभावना ये है कि शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे और उसके बाद 3 नंबर पे कोहली आएंगे? मेरे हिसाब से ये सुसाइडल होगा, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो। तो आप जायसवाल नहीं को एज फ्रंट ओपनर देख रहे हैं या फ्रंटलाइन ओपनर हमारा कोहली और शर्मा है और जायसवाल इज अ बैकअप ओपनर? आई थिंक जायसवाल इज आवर फर्स्ट ओपनर। अगर आप मुझसे पूछिए जो भी हमारा पहला मैच होगा, रोहित शर्मा एट 1, जायसवाल एट 2, थर्ड पे कोहली, फोर्थ पे यादव, फिफ्थ पे आपका ऋषभ पंत और छठे पे ऑलराउंडर एंड देन दी बॉलर्स दे वुड बी देयर। ये मेरा पहला मैच का तो शायद टीम यही होगा। लेटर ऑन आप जो भी चेंज करें, इसमें बस बात वही होगी कि आई पर्सनली फील कि रोहित शर्मा वुड बैट जैसे वो पूरे आपके इसमें कर रहे थे वर्ल्ड कप में, कि फर्स्ट बॉल से मारना है, ठीक है। एंड अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कोहली विल एंकर द टीम। अगर ये लोग 7-8 ओवर तक रह गए तो मे बी ये लोग शायद कुछ और चेंजेस करें, सूर्य कुमार यादव को ऊपर प्रमोट कर दें, थर्ड पे कर दें, एंड ऑल दैट दे कैन डू थिंग लाइक दैट। बट देन फर्स्ट मैच आई थिंक Kohli is not the opener. Kohli is point number 3rd. I don't think him as the opener. I think it brings up the question again: what is a par score? Like it'll depend on the wickets, right? When we talk about people like Rohit Sharma and Virat Kohli, the word I like he used, anchor. 60-65 बॉल खेल के अगर 100 रन निकाल के दे रहा है between the two of them, then I feel that they have done their job. Because if we are playing on slow, low wickets, it's not going to be a 200, 220 ka wickets, right? These would be 170, 180 will be power scores. So if you have people like Virat Kohli and Rohit Sharma, between the two of them playing 60, 65 balls and getting like 90 to 100 runs, you would expect that people from the other end, the Surya Kumar Yadavs of the world, will be in a position to go out and play attacking innings and get the team to like a 170, 180 ka score, which to me will be a par score. Again, depends on the wickets. So Kohli batting at 3, Kohli opening is immaterial. His role will be to anchor the inning, play out those 60, 65 balls, get as close as he can get to between a 90 to 100 runs, and then hope that on the other side, our more ferocious, our more attacking batsmen are doing what they do best to be able to get us to that par score. राइट। तो आप लोग के हिसाब से ओपनर हमारा यशस्वी और रोहित ही रहने वाला है, राइट? उससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। बट ठीक है, मेरा विचार बिल्कुल ही अलग है इससे। क्योंकि अगर आप, ये बहुत मुश्किल है हो पाना कि कोहली हमारे 11 में रहेगा और कोहली को हम पुश डाउन करते रहेंगे और बैटिंग नहीं देंगे। वो नहीं होगा। कोहली इज टू बिग अ प्लेयर और ईगो ही मैटर करता है। ये तो टीम सिलेक्शन और ये सब सही पता चल गया। तो ये तो नहीं हो पाएगा कोहली के साथ कि हम उसको पुश डाउन करेंगे ऑर्डर में और उसकी बैटिंग नहीं भी आने से चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा वैसे। और मेरे हिसाब से कोहली मिडिल ऑर्डर में, अगर ये स्लो एंड लो विकेट है, अगर ये पूरा टूर्नामेंट ही 120 से 150 के बीच में खेला जाने वाला है, तब तो कोहली 3 नंबर के लिए बेस्ट है। मतलब दुनिया में कोई नहीं है उससे अच्छा बैट्समैन। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में हम लोग अक्सर हारते हैं कि नॉकआउट सिनेरियो है, हमको वर्क स्कोर बोर्ड का प्रेशर बना के देना है पोजीशन को, और तब हम उसी शेल में घुस जाए, या फिर हम फिर उसी शेल में घुस जाए जिस शेल में हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल में थे, जिस शेल में हम लोग T20 सेमीफाइनल में थे लास्ट ईयर, जिस शेल में उससे पिछले वाले T20 में थे, तो वो इशू हो सकता है। डिस्पाइट मतलब कोहली से अच्छा बैट्समैन खेल के इतिहास में सिर्फ एक ही रहा है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं। बट ये रोल का रिचर्ड्स नहीं, सचिन थे। लेकिन इस रोल का इस फॉर्मेट में जगह बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना। बट देखते हैं हाउ इट अनफोल्ड्स, वी विल सी। तो ओपनर का एक पॉइंट था मेरे पे। दूसरा पॉइंट ये था जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा टच अपॉन किए
कि चार स्पिनर्स के पीछे का क्या लॉजिक है, क्योंकि चार में से दो स्पिनर है, मतलब कॉपी पेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, टाइप ऑफ बॉलिंग और ये सब वो सब, सिवाय इसके कि एक वाला और लंबा है थोड़ा सा तो और ऊपर से फेंकता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बॉलिंग में। तो हम चार स्पिनर और तीन फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, तो बॉलिंग अटैक के हिसाब से क्या समीकरण बैठता हुआ दिखता है अपने को? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अक्षर और जडेजा यूजुअली शुड नॉट प्ले टुगेदर। वो तभी होगा जब आप पांड्या को निकालकर अक्षर पटेल को उसके जगह रख रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज आई डोंट सी अक्षर पटेल प्लेइंग एनी मैच। अगर हार्दिक इज प्लेइंग, या आप एक पेसर के साथ जाने के लिए खुश हैं कि हम बस बुमराह खिलाएंगे? वो नहीं होना चाहिए। हम बुमराह पांड्या, अक्षर, जडेजा, कुलदीप। आई डोंट सी, मतलब क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से क्या है ना कि अक्षर और जडेजा दोनों ही डिफेंसिव बॉलर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स। देन आपके पास क्या हो जाता है कि अक्षर, जडेजा एंड इवन पांड्या, आपके तीन बॉलर्स डिफेंसिव हो जाते हैं, ओनली लेट्स से आइदर चहल और योर कुलदीप, एंड द सेकंड वन इज बुमराह जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस रहेगा। पांड्या मेरे डिफेंसिव बॉलर नहीं। देखिए ऐसा बोलिएगा मत उसके सामने। देखिए, बाहर में जितना भी मेहनत कर लेता हो भाई, लेकिन आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि क्या हुआ। मतलब हिज इंजरी इन द वर्ल्ड कप वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नहीं तो शमी को मौका नहीं मिलता, और वो आग देखने के लिए नहीं मिलता इस वर्ल्ड कप में। आई एम रियली, अगर आप पूछिए रिंकू की बात की, अगर शमी होता तो शायद सिराज नहीं जा रहे होते, फिर हम लोग को सोचना ही नहीं पड़ता, हमारा दो पेसर हर मैच में बुमराह और शमी होता, और हमारे पास स्पिनर के तौर पे, क्योंकि चहल एंड कुलदीप दे कैन नॉट बैट। कुलदीप थोड़ा बहुत बैटिंग दिखाया कल परसों वाले मैच में, बट आई डोंट स्टिल एक्सपेक्ट हिम टू हिट अ लॉट ऑफ रन्स। सो आई पर्सनली फील कि इन दोनों में से कोई एक, एंड ऑफ कोर्स जडेजा वुड बी दी नंबर वन लेफ्ट आर्म स्पिनर व्हेन इट कम्स टू विद दी ऑलराउंड टैग, एंड पांड्या या अक्षर। अक्षर बहुत कम चांस है कि खेलेगा, पांड्या का ज्यादा चांस है कि खेलेगा। दैट्स हाउ आई थिंक। बट चार स्पिनर ठीक कॉल है मेरे हिसाब से अगर एक हटा भी देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप हमसे पूछिए, तो अगर एक स्पिनर कम भी होता, आई देखिए 5 मैच का तो टूर्नामेंट होता है, इसमें आप जडेजा अगर 2 मैच भी खराब करेगा, आप तीसरा उसको ही खिलाइएगा, क्योंकि आपको पता है वो 100 मैच अच्छा खेले हुए हैं, आप उसको निकालिएगा नहीं। सो आई डोंट थिंक कि अक्षर एकदम से टूर्नामेंट के बीच में जडेजा को असब कर देगा कि नहीं भाई इसको निकालिए और हमको ले आइए। So I personally feel कि इससे ज्यादा अच्छा तो, मतलब there could have been one more option, maybe Rinku Singh or somebody like that. That's the thing. ओवरकिल हो गया थोड़ा। पराशर, योर टेक? यार अक्षर पटेल इज नॉट अ बॉलर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। इज नॉट अ बॉलर। आप उसको बोल लीजिए बॉलर बोलना है इंडियन कंडीशन में, श्योर यू कैन से दैट। अब हो सकता है कि जाए और बिशन सिंह बेदी सही में बन जाए अक्षर पटेल, हम नहीं मानते उसको स्पिनर, फॉर द सेम रीजन व्हाई हम पांड्या को फास्ट बॉलर नहीं मानते। अब उसको एज अ बैट्समैन खिलाना चाह रहे हैं, श्योर खिला सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट कंसीडर देम बोथ टू बी ऑलराउंडर्स। आपको अक्षर पटेल को खिलाना है आप खिला लीजिए, बट अप टू रोहित भाई's point, I don't see him playing ahead of Jadeja. I do want to see our spinners in the game. Same thing I had mentioned in the last World Cup. अगर मैच जीतना है विकेट लेना होगा, आप रन कंस्ट्रेन करके नहीं जीत सकते, और विकेट लेना अगर आपको है तो यू हैव टू ब्रिंग योर स्पिनर्स इनटू द गेम। यूजी चहल के साथ जितना गलत हुआ है इंडियन क्रिकेट में, आई डोंट थिंक यूजी चहल अगर इंडिया के बाहर किसी भी टीम से खेल रहा होता तो ही वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग 11, बट क्या इंडिया में उसको नहीं मिल रहा है मौका। कुलदीप यादव फॉर द सेम रीजंस, आई थिंक ही इज वेरी वेरी गुड एट व्हाट ही डज, क्या है इंडिया में, इसीलिए उसको स्टार्टिंग 11 में उतना मौका नहीं मिला है जितना कि एनी अदर प्लेस ही वुड हैव गॉट। सो आई थिंक बिटवीन द टू ऑफ देम आई एग्री विद रोहित भाई, बोथ कैन, नीदर कैन बैट, व्हिच आई थिंक इज अ बिग बिग डाउनसाइड। थोड़ा बहुत बैटिंग का भी अगर एलिमेंट रहता तो हमारा बैटिंग लाइनअप अदरवाइज फिर यार सिराज, बुमराह, कुलदीप, चहल, अगर आपके नीचे के चार है मान ले, फॉर यू नो आर्गुमेंट से अगर लेके जा रहे हैं, तो दैट डजंट इंस्टिल अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू आर लाइक चेजिंग डाउन 180 इन अ प्रेशर मैच, राइट? सो आई डोंट थिंक बोथ कुलदीप और चहल कैन प्ले, जरूरत भी नहीं है, लेकिन किसी एक को एटलीस्ट आप खिलाइए। ये नहीं कीजिएगा कि नहीं नहीं हम लोग को बैटिंग का ऑप्शन भी देता है अक्षर पटेल, इसलिए अक्षर पटेल भी खेलेंगे, जडेजा भी खेलेंगे, पांड्या भी, ये मत कर रहे हैं यार, मतलब क्योंकि ना वो बैटिंग करेगा ना बॉलिंग करेगा, ही विल बी अ लायबिलिटी ऑन द टीम, राइट? आप प्योर बॉलर खिलाओ, बोल के 4 ओवर खेलो, रन खाना मार खाना बेटा मार खाओ,
लेकिन 2 विकेट निकाल के दो टॉप ऑर्डर का। सही है। तो स्पिन स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा पेच है और देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। हम लोग ओपनर का बात कर लिए, हम लोग स्पिनर का बात कर लिए, फास्ट बॉलिंग में ज्यादा बात करने को है नहीं। बुमराह अर्शदीप टू स्टार्ट और बुमराह सिराज टू स्टार्ट। I रोहित think भाई, व्हाट डू यू थिंक? I think Bumrah and Arshdeep. I I would think so not too. put Siraj. I would not put Siraj. देखिए इससे क्या है ना, एक तो आपके पास वेरिएशन आता है, लेफ्ट आर्म राइट आर्म का आता है, एंड पर्सनली इफ यू फील सिराज को ओवर कुक कर दिया गया आरसीबी में, बेचारा एक तो कोई और बॉलर है ही नहीं, पूरा प्रेशर इस पे आ गया, इसको भी उतना ही मार पड़ा, एक मैच छोड़ के शायद ही किसी मैच में परफॉर्म किया है। एंड आई थिंक अर्शदीप के साथ एक फायदा है कि डेथ ओवर्स में ही कैन बी वेरी वेरी गुड Very good. कंपेयर्ड टू सिराज। सो पर्सनली बुमराह एंड अर्शदीप, इनफैक्ट आई वुड इवन से 1 मिनट के लिए अर्शदीप इज अ बेटर बैट्समैन आल्सो देन सिराज, I agree with that. जो कि बहुत एकदम है, लेकिन बट हाँ वो भी है। Yeah, I 100%. I think Arshdeep would be in my playing 11 ahead of Siraj. क्योंकि bowls better in the death, variation आपको देता है, नया बॉल से भी अच्छा डालता है, gets the ball to move. पहला 4 ओवर में अगर कोई बॉल स्विंग कराने वाला है तो nothing against Siraj, but I think Arshdeep has a better, he's more potent those first 4 overs, and towards the end also he's like pretty good. So I think Arshdeep ahead of Siraj to me also. Right. So that is a straightforward call. I mean, at least agreement तो है हमारे बीच में, वहाँ क्या होगा भगवान जाने। बट ठीक है, तो फास्ट बॉलिंग भी हो गया, स्पिन बॉलिंग भी हो गया, ओपनिंग भी हो गया। क्या इतिहास में पहली बार हमारा मिडिल ऑर्डर ही सबसे सेटल लग रहा है? रोहित भाई, मतलब क्या आप चेंज करिएगा? आपके पास एक तरीके से देखिए, एक पंत है जिसका बैकअप सैमसन है, या सैमसन का बैकअप पंत है, वो तो वहां पे जाके पता चलेगा एग्जैक्टली ये लोग क्या थिंकिंग प्रोसेस रखे हैं, बट पर्सनली आई फील पंत का बैकअप सैमसन है। शिवम दुबे एकमात्र एक और आपके पास मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन है हु कैन कम इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या ओनली। आई डोंट थिंक हिम रिप्लेसिंग सूर्य कुमार यादव। एंड कोहली तो भाई एटलीस्ट नॉट इन द फर्स्ट मैच, नाइदर इन द सेकंड थर्ड। दैट्स आई एम वेरी वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर कि कोहली 3, 4, 5 आप कोहली, सूर्या और पंथी देख रहे हैं, उसके अलावा तो आप कुछ और देख नहीं रहे। अभी तो हमको नहीं लग रहा। आप मतलब मेरे हिसाब से देखिए, हमको लगता है ना, हम लोग अपने सिलेक्शंस में हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं, वी डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपको कोहली को ड्रॉप करना था तो आप ड्रॉप कर देते, अगर आप लेकर जा रहे हैं मतलब आप खिला रहे हैं। यू कैन नॉट बी मेकिंग हिम सिट आउटसाइड एंड एक्सपेक्ट कि भाई आप बैठे रहो बाहर, बिकॉज सी अगेन ही इज अ चैंपियन बैट्समैन। मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज के पिचेस पे लास्ट टाइम जब इंग्लैंड भी गई थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, उनके ग्राउंड्स पे 200 तक जाता है, 250-300 वाला स्कोर नहीं बनता है। और कोहली 200 वाले में ना डबल ट्रिपल और ये जो डबल दौड़ने वाला एंगल आ जाता है, एक साइड से बीच में चौका मार देना, उतना ज्यादा छक्के की जरूरत नहीं। सो कोहली वुड बी एन एसेट। कोहली को ले जा रहे हैं तो ये खिलाएंगे जरूर। एंड अगेन वन मोर थिंग कि शिवम दुबे के लिए भी एक सेकंड के लिए भाई अच्छा कर जाए तो बेहतर है, बट ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म सडनली, क्योंकि हमने देखा है पहले भी, आप थोड़ा, मेरे को स्पिनर्स का याद आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती से एक्सपेक्टेशंस लेके गए, बेचारा अबू धाबी वाले, दुबई वाले वर्ल्ड कप में एकदम खराब हो गया। राहुल चहर को एक बार लेकर गए, जब भी आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग कुछ भी किए हैं तो वो उतना अच्छा गया नहीं हम लोगों के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ओनली अगर पांड्या बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस दे देना तो दुबे का एंट्री है, क्योंकि अदरवाइज आई डोंट थिंक हिम कमिंग इन दिस। एंड यार सबसे बड़ा बात, इमेजिन 9 जून को मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी कैंप में बैठे हुए और आपको कोई बोल दे कि विराट कोहली आज नहीं खेलने वाला है, शिवम दुबे खेलने वाला है उसकी जगह, लाइक आपको मतलब कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा कि चलो इंचुत के नहीं खेलने वाला है, मैच तो अपना है। नहीं, So I think big match player, खेलेगा। to the argument कि big match player, बड़े मैचेस में you would want somebody like Virat Kohli in the center to be able to absorb that pressure, and to Rohit bhai's point कि 170-180 के मैच के लिए विराट कोहली is your de facto. मेरा अभी भी मत है, मेरा अभी भी यही हाँ, मानना है कि जायसवाल की जगह कोहली से ही ओपन कराइए, तब आपके पास शिवम दुबे या संजू सैमसन में से किसी एक को खिलाने का मिडिल ऑर्डर में जगह बन जाएगा। क्योंकि संजू सैमसन अभी जिस तरह का बैटिंग कर रहा है, मतलब संजू सैमसन के बारे में हम लोग कोई बात नहीं की अभी, बट संजू सैमसन जितना
क्लियर हेड से बैटिंग कर, जो चीज हम्म। केएल राहुल अभी तक नहीं सीख पाया, इतने साल से इंटरनेशनल खेल रहा है। केएल राहुल हमेशा सोचता रहता है कि भाई ये करना इसकी नहीं करना, ऐसा लगता है उसका बैटिंग देख के भगवान जाने क्या सोच रहा होता है। बट संजू सैमसन में जो क्लैरिटी अभी दिख रहा है इस आईपीएल में स्पेसिफिक, और वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा सेट हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और उसको So- भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा स्पिन स्लो लो ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। So let me throw this as a question, right? Based on recent form, again IPL ही लेते हैं चलो, for the sake of argument, and Surya का performance in the last World Cup when we needed him in the final. Surya versus Sanju Samson क्यों नहीं है debate? नहीं नहीं, सूर्या टी20 में तो सूर्या को टी20 में तो नहीं छू सकते। आई डोंट थिंक सूर्या विल बी द थर्ड नेम ऑन द लिस्ट। नहीं छू सकते। रोहित देखिए, शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव, ये 3 नाम पहला है, उसके बाद वाइस कैप्टन आना भी होगा तो आएगा। देखिए हर एरा में कोई ऐसा क्रिकेटर रहा होगा और रहता ही है जो कि अनफॉर्चुनेट कैटेगरी में रहते हैं कि भाई ये नहीं होता तो इसको इतना मौका मिलता है एंड ऑल दैट। प्रेजेंटली इस प्रेजेंट एरा में संजू सैमसन इज गोइंग टू बी लाइक दैट पर्सन, क्योंकि ऋषभ पंत के आ जाने के कारण अगेन वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट हिम, 30 मिनट्स हो गया होगा, एक बात भी सही से नहीं किया। अदरवाइज संजू सैमसन, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, वो उस आईपीएल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अभी 10 में 9 मैच जीत के बैठी हुई है। कैप्टन कर Number रहा है, one, नॉट जस्ट he's the captain. He is not somebody who is not performing. Performer है, कैप्टन है, बहुत बेहतरीन ढंग से टीम को हैंडल कर रहा है। He is handling the spinners जिसको आप लेके जा रहे हैं, युजवेंद्र चहल, he is handling him like anything, मतलब इतना बेहतरीन हैंडल कर रहा है उसको। आपका ओपनर जो होगा यशस्वी जायसवाल शायद उसको हैंडल कर रहा है। So personally, if you think for a second, I would एग्री कि अगर थोड़ा भी पहले 6 में हमारा कोई भी थोड़ा बॉलिंग कर देता ना, तो छठा पे तो एनी डे पांड्या से बेहतर है सैमसन। क्योंकि एक चीज जानते हैं, देखिए नथिंग पर्सनली अगेंस्ट पांड्या, बट पांड्या एंड ऑल का जो रेंज है ना लिमिटेड है, वो पुराने जमाने वाले ही कि हम लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के साइड ही मारते रहेंगे। संजू सैमसन एंड ऑल जो लेटेस्ट मॉडर्न डे टी20 क्रिकेटर्स जो जिसको कहते हैं चीकी शॉट्स, आप फाइन लेग के ऊपर निकाल दिए, आप थोड़ा थर्ड मैन के साइड खेल दिए, ये सब भी ये लोग करते हैं, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, मोस्टली रोहित शर्मा भी नहीं करते हैं, कोहली भी ज्यादा नहीं करता है, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल करते हैं, ऋषभ पंत करते हैं, संजू सैमसन इज ऑफ दैट कैटेगरी। तो संजू सैमसन अगर मौका मिलता तो ही शुड हैव बीन इन दिस टीम, एंड फॉर दैट अगेन आई वुड से देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि कोहली एंड रोहित शर्मा को ओपनर कर दीजिए, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव को कर दीजिए, पंत को 7 पे रख लीजिए, अब 5 पे आप अपना संजू सैमसन को लाइए या शिवम दुबे, जो आपकी इच्छा है। आप पिच देख लीजिए, ग्राउंड देख लीजिए उस दिन का। दैट इज वन ऑप्शन, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। इस पूरे इस ऑप्शन में एक ही प्रॉब्लम है, दैट शर्मा एंड कोहली शुड नॉट गेट स्टक इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। वो नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं हो, बस वही नहीं होना चाहिए, बस ये है। शर्मा तो स्टक नहीं होगा, शर्मा तो इन एंड आउट जितना भी भाई है बस, और कुछ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से, देखिए एक तो देखिए किस्मत है, बाकी सब चीज आप लोग बात कर लिए। ये देखिए कि आईपीएल के प्लेऑफ के पहले इंग्लैंड वाले लोग चले जाएंगे भाई, अंतिम 10 दिन वो लोग कैंप बनाएगा, मिलेगा जुलेगा, भूलेगा कैसा था, प्रिपरेशन का भी तो बात होता है ना भाई, है ना। हमारा चहल खेल रहा है एक टीम के लिए, कुलदीप यादव एक टीम के लिए, तो एक चीज अच्छी बात है कि 10 टीम बना के रखे हैं जिसमें 4 ही लोग प्लेऑफ में जाएंगे, बाकी 6 के लोग तो बोलेंगे हम लोग चले अपना। तो इस बार मुंबई इंडियन के हमारे दोनों योद्धा, कप्तान और वाइस कैप्टन, लगता है पहले ही छुट्टी ले लेंगे, ठीक है। हमारे तो कोहली दोनों आ जाएंगे, हमारे ऋषभ पंत आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, सूर्य कुमार यादव आएगा, बहुत लोग आ जाएंगे। तो किस्मत यह कि राजस्थान रॉयल का आपका 3 नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और कलकत्ता से कुलदीप यादव एक गारंटीड अभी तक के लिए, तो ये 4 लोग गारंटीड है। कुलदीप तो दिल्ली में, सॉरी एकदम कुलदीप हमको मारेगा, कलकत्ता में सॉरी, हाँ कुलदीप भी फ्री हो जाएगा। तो ये 3 लोग एकदम अभी फंसे हुए लग रहे हैं, बाकी 1-2 देखेंगे कहीं और कोई फंस जाए। तो हम लोगों को उस चीज पे भी सोचना चाहिए कि वी शुड सेंड आवर टीम, एक टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि अगर जितना मुंबई इंडियंस के बारे में सुन रहे हैं, बॉन्डिंग तो वहां गड़बड़ाई हुई है, मतलब बॉन्ड बड़ा कमजोर है। केमिस्ट्री आप लोग का अच्छा था, मेरा तो बहुत खराब था। कौन सा बॉन्ड जो सबसे कमजोर हो, कोवेलेंट और जो भी नाम था दूसरा, को नाम भी नहीं याद है,
उस पे आप चले जाइए। बहुत कमजोर बॉन्ड है इन लोगों का भी, बहुत ज्यादा। बहुत आई थिंक प्रिपरेशन के लिए यार एक्लामेटाइजेशन स्पेशली क्योंकि यूएस और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, 12 घंटा का टाइम जोन डिफरेंस, आप लैंड कीजिएगा 3-4 दिन तो आपको साला जेट लैग से उतारने में लग जाता है। नो एवरीवनस अ प्रोफेशनल हियर, लेकिन साला ह्यूमन बॉडी का हाँ, तो जो है सो लिमिट्स है। होता है ना भाई, तो That's true. थोड़ा बहुत तो आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा। बट हमको नहीं लगता है आप एक हफ्ता पहले भी भेज देंगे पांडे और रोहित शर्मा को, तो Sort out हो दैट जाएगा। बॉन्ड इज गेटिंग फिक्स। हाँ, टीवी पे हो सकता है अच्छा दिखे भाईचारा। एक लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर, yes or no. Do you still think Pandya getting injured can be the best thing that can happen to this team? नो, देखिए बहुत सिंपल है, अब सेलेक्ट हो गया तो हमारा प्लेयर है, अब उसके खिलाफ खराब तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। बट अब इक्वेशन नहीं जीते, बैठ रहा है ना रोहित। अब देखिए बात वही है ना कि कुछ तो सोचा ही होगा कुछ। देखिए बात वही है कि अब जब वर्ल्ड कप में भी हम लोग 5 बॉलर के साथ जा रहे थे तो पांड्या भाई थे कि 5वां बॉलिंग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सब देखिए शार्दुल ठाकुर है, उसके बाद अभी भी आईपीएल में विकेट नहीं ले पाए। आईपीएल का महीना बीत गया, विकेट नहीं आया है घर में एक भी। शार्दुल को हम बहुत लव करते हैं, बहुत चाहते हैं कि बेचारा सक्सेसफुल हो, बट प्रॉब्लम हम लोग का किस्मत जो है ना बहुत ही खराब है। ऑलराउंडर वाले में एक सीधे कपिल देव एक को दिया गया, उसके बाद ड्रॉप किए तो प्रभाकर, ड्रॉप किए तो अब पांड्या पे काम चला रहे हैं, क्या इरफान करें। है। पराशर, आपको क्या लगता है? हाँ, आई थिंक पांड्या जो है टीम का कॉम्पोजिशन को एट दिस पॉइंट थोड़ा स्क्यू कर रहा है। फंसा देगा। आई डोंट सी हिम इन द प्लेइंग 11। नथिंग अगेंस्ट हिम, आप उसको 15 में लेकर जाना चाह रहे हैं तो जाएं, एंड फॉर ऑल वी नो, who knows, he hits form in the next week हाँ, or so. quite possible. वो तो कभी भी कर सकता है। But I don't see him in the starting 11 to be honest. But yeah, that's it. That's our take on the 15 that we have for the World Cup at this point of time. बाकी आप लोग को क्या लगता है, ओपनर किसको देख रहा है आप? यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन है कि कोहली शर्मा बेटर है या कोहली, सॉरी, शर्मा जायसवाल। स्पिनर्स में भी डाउट है कि क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। फास्ट बॉलर इज द ओनली थिंग विच इज वेरी क्लियर, एंड मिडिल ऑर्डर मोर और लेस, राइट, डिपेंडिंग ऑन दी ओपनिंग कॉम्बिनेशन। तो ऐसा ही है हमारा टेक। बाकी आप बताइए, और बाकी गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। वी विल कम बैक सून। थैंक यू, बाय बाय।